Good evening, students. I am Himlata Yadav, your teacher, and I am teaching you biotechnology. So we were on the topic. We were discussing that how the resources which are available, database resources which are available on the internet, can be helpful for us. We have discussed about NCBI, National Center for Biotechnology and Information, and also we have discussed about various programs which are used to find the particular, we can say, function of any cDNA, and even the relationship between two DNA molecules or proteins molecules. We have discussed these things. So, we can match the sequences from the database called as homologene, and we can find the relatedness by the ref sequence also. And there are different kinds of. We have studied the names. Now we will be moving to our next topic, which is the last topic of this chapter, genomics and proteomics. Then we will be moving to the next chapter. So I'm sharing the screen with you. So the last last topic was remaining, and we have discussed the things. So regulatory sequences, proteins, genes, processing raw informations, analysis using bioinformatic tools. These we have discussed that how we can analyze the things, and then some of the database sequences also we have discussed, that were the homologene. As I was saying, homologene is a database that orthologs and the homologs of the several organisms like human, mouse, rat, zebrafish can be represented in the unigene and the locus link. Then we have also discussed these resources for gene level sequences. So in that, homologene, ref sequence, and others were used. Unigene mentioned about ESTs and method redundant ESTs can be therein produces many redundant ESTs because several cDNA clones are present in the same genes. To manage redundancy, EST unigene was used. Unigene removes the redundancy. Homologene is used for orthologs and homologs. Ref sequence was used for accurate database of mRNAs. There are many other resources provided by NCBI, and here database name is written EMBL, European Molecular Biology Laboratory, and here the information which are present here on this database is also given in the front in the table. यहाँ पर आप देख रहे हो टेबल में ही आपको डाटाबेस और उनके इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होते हैं वो दे रखे हैं. एंड क्यूरेटर भी दिया हुआ है. क्यूरेटर एक ऐसा वन हु रिव्यूज एंड चेक्स द न्यूली ट्रांसमिटेड डाटा, इंश्योर ऑल द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड. तो क्यूरेटर बहुत इजी होता है. जब भी हम किसी रिसर्च वर्क को डाल रहे होते हैं तो ये चेक करता है कि जो न्यूली सबमिटेड डाटा है उसने सारी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है. एनालिसिस यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक टूल, ये लास्ट टॉपिक है. मेनी काइंड ऑफ एनालिसिस हम कर सकते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक टूल से, जिसके अंदर प्रोसेसिंग रॉ इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेंगे. द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीक्वेंस रॉ इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स इनटू जीन्स. एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीक्वेंस जो है रॉ इन्फॉर्मेशन का, उसको प्रोसेस किया जाता है बायोइन्फॉर्मेटिक टूल से जीन्स के अंदर, प्रोटीन्स encoding their function, the regulatory sequences inferring phylogenetic relationships. Genes, the gene prediction can be done by using computer program like GeneMark for bacterial genomes and GeneScan for eukaryote. जीन प्रिडिक्शन भी करे जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, जैसे जीन मार्क है बैक्टीरियल जीनोम के, जीन स्कैन है यूकारियोट का. प्रोटीन सीक्वेंस इन्फर किया जाता है फ्रॉम प्रिडिक्टेड जीन्स बाय यूजिंग सिंगल कंप्यूटर प्रोग्राम्स.
Regulatory sequence can also be identified and analyzed by using bioinformatic tools. Inferring phylogenetic relationship, information regarding the relationship between organism can be obtained by aligning multiple sequences, calculating evolutionary distances, and constructing phylogenetic trees. Making a discovery using bioinformatic tools and databases, the function of unknown genes can be predicted. तो यहाँ पर अननोन जीन का फंक्शन भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो ये आप सारे कर सकते हैं सॉल्व। प्रोटियोमिक्स, ब्लास्ट, इनके बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो दिस यू कैन सर्च फ्रॉम द ऑल द टॉपिक्स which are further, we can say we have read in this chapter, genomic, proteomics and bioinformatics. So I hope this has been done, and now we will be moving to the next chapter, which is the next chapter, which is as follows. We'll be learning about cell culture and gene manipulation. So interesting chapter it is. Cell culture, we will be learning about that. So how the cells are cultured in the laboratory. लेबोरेटरी में हम छोटे से मीडिया पे पहले स्मॉल स्केल एक कोनिकल फ्लास्क में 500 ml में या उससे थोड़े ज्यादा मीडिया में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन या मीडिया में हम पहले स्मॉल लेवल पे माइक्रोब को ग्रो करते हैं, एंड देन जब वो हमारा प्योर कल्चर बन जाता है, देन हम उसको बायोफर्मेंटर में भी लार्ज अमाउंट में भी ग्रो करा सकते हैं। दैट इज अवर सेल कल्चर। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बायोरिएक्टर्स का, सेल कल्चर, जीन मैनिपुलेशन का, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. So it is unit 6, the new unit we are going to start today, and we have done with the proteomics. So it's unit 6 which we are starting. So cell culture and genetic manipulation, मतलब सेल को कैसे कल्चर करा जाता है। सेल माइक्रोब्स तो हमें कल्चर करना ही पड़ेंगे। अब हम बायोटेक में क्या करते हैं, हम बायोटेक में भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो कराते हैं। जीन के अंदर फॉरेन जीन हम डाल सकते हैं थ्रू प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, बट हमें उन्हें ग्रो तो कराना पड़ेगा ताकि हमारी फॉरेन जीन जो एक्सप्रेस कर रही है उसको हम लार्ज अमाउंट में ग्रो कर सके। तो सेल कल्चरिंग इज ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी कंडीशन। जेनेटिक मैनिपुलेशन, हम जो उसके अंदर फॉरेन जीन डालते हैं उसी को जेनेटिक मैनिपुलेशन कहते हैं। अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, which is the new chapter of this first chapter of this unit, microbial cell culture and its application. तो प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी कल्चर किए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इनसे, विच आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। हमारे लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इनसे, माइक्रोब से, बैक्टीरिया से, फंगी से। जैसे बैक्टीरिया से हमको पता है इकोलाई को हमने यूज किया आर्टिफिशियल जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाने के लिए, फंगी को हमने यूज किया। ये फंगी तो ब्रूअरी इंडस्ट्री में भी यूज होती है, सैक्रोमाइसिस यीस्ट, और ये ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज होती है, बेकरीज में यीस्ट यूज होती है। इवन हम फंगी को एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन। सो दीज फंगी आर यूज्ड फॉर the growth of the streptomyces fungi is used for making streptomycin. So antibiotics बनाते हैं हम, वही आगे भी दिया हुआ है कि some commonly example of antibiotic इथेनॉल, एंजाइम, तो बेवरेज इंडस्ट्री में भी यूज होती है यीस्ट, तो ये फंगी ही तो है, यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस होती है। विद द एडवेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, genetic engineering techniques, microbes are being also used for the production of recombinant molecules such as insulin, hepatitis B vaccine, growth hormones, and interferons. And microorganisms are also known or cultured for the production of biomass per se, such as single cell protein. Besides these, scientists culture microbes in their laboratories for research purposes. So ये सारे products तो हम बनाते ही हैं, पर साइंटिस्ट लैब में अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए भी बहुत सारे माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं।
It is therefore very important to understand how microbes are cultured in the laboratory or in the industries for production of various important molecule. तो ये जानना तो बहुत ही जरूरी हो गया फिर, जब हमें हमेशा ही माइक्रोब्स ग्रो कराने हैं। तो कैसे ग्रो कराए जाते हैं माइक्रोब? सेल कल्चर, उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कैसे ग्रोथ कर्व्स माइक्रोब्स फॉलो करते हैं, ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होती है, सभी हमें पता होना चाहिए। माइक्रोबियल कल्चर वर्क एज अ फैक्ट्री इन विच मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एक्सप्लॉइटेड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट। तो माइक्रोब को हम जब ग्रो कराएंगे, कल्चर बनाएंगे, तो एक फैक्ट्री की तरह काम करेगा माइक्रोब, हमारा प्रोडक्ट बना के देगा, हमें रॉ मटेरियल को यूज करेगा, प्रोडक्ट बना के देगा। देयर इज मैक्सिमल कैपेसिटी फॉर अ सिंगल माइक्रोबियल सेल टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा कैपेसिटी होगी कि रॉ मटेरियल को से प्रोडक्ट बना सके गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। हेंस टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विद इन अ गिवन टाइम, तो एक अमाउंट का प्रोडक्ट बनाना एक पर्टिकुलर टाइम में, इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द सेल। ये कैलकुलेट करना किसी नंबर ऑफ सेल का बहुत जरूरी है। एज वेल एज डबलिंग टाइम भी पता होना चाहिए हमें कि कितने टाइम में वो माइक्रोब डबल हो जाएगा फॉर ऑफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरियम यूज्ड इन प्रोसेस। Like any other chemical reaction which requires an appropriate temperature, pressure, pH, and solvent, microbes also grow in appropriate environment of pH, temperature, nutrients provided by the growth medium. So microbe को particular temperature, particular pH, solvents ये सब चाहिए होते हैं जो वो ग्रो कर सके appropriate environment में, pH के, temperature, nutrients provided by the growth medium and substrate raw material which is converted by the bacterium into desired product। और वो कौन सा सबस्ट्रेट यूज करता है जिसको वो प्रोडक्ट में बदलता है, ये भी उसका। तो ये हमें अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट कंडीशन बता दी कि माइक्रोब को पीएच, सॉल्वेंट ऑफ जिस वो सॉल्वेंट मीडियम में वो ग्रो करेगा, माइक्रोब को इन्वायरमेंट में टेम्परेचर भी, न्यूट्रिएंट भी उसके सब मॉनिटर होते हैं ताकि वो अपने रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में बदल सके। ये चैप्टर जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स कल्चरिंग कि माइक्रोब को कल्चर कैसे किया जाता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस कैसे की जाती है, एप्लीकेशंस क्या हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए। दैट रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चरिंग माइक्रोब ऑन अ लार्ज और इंडस्ट्रियल स्केल आर डिफरेंट फ्रॉम कल्चरिंग देम इन द लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में जब हम किसी माइक्रोब को कल्चर करते हैं तो जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं देन द जब हमें वो लार्ज स्केल में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जब हमें कल्चर कर रहा है तब से। तो इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। छोटे से स्केल पे तो हम बहुत आराम से उसको ग्रो करा लेंगे, बट लार्ज स्केल की बात आती है तो हमें बहुत ज्यादा उसमें पैरामीटर्स को चेक करना पड़ता है और काफी पर्टिकुलर कैलकुलेशंस भी उसमें होती हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर माइक्रोब, माइक्रोबियल कल्चर टेक्निक में सबसे पहले न्यूट्रिएंट मीडिया समझना है कि न्यूट्रिएंट्स जरूरत होते हैं माइक्रोब को ग्रो होने के लिए। तो न्यूट्रिएंट माइक्रोबियल कल्चर के ऑल ग्रोइंग माइक्रोब रिक्वायर वाटर, सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मिनरल एलिमेंट्स। सभी माइक्रोब्स को, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, सभी को ये सब कॉमन चीजें चाहिए। वाटर सबको चाहिए, ऑक्सीजन सबको चाहिए, कार्बन, नाइट्रोजन का सोर्स and mineral elements चाहिए। For culturing microbes on small scale such as laboratory, it is relatively simpler to devise nutritive media using pure chemicals such as full composition medium। जब हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो बहुत आसानी से हमें न्यूट्रिटिव मीडियम बना लेते हैं, प्योर केमिकल्स मिला देते हैं, फुल कॉम्पोजिशन की मीडियम पता होती है हमें, बना लेते हैं। ऐसे मीडिया को सिंथेटिक मीडिया बोलते हैं। जब हमने केमिकल्स को ऐड करके अगर अगर में और सेमी सॉलिड मीडियम बना दिया, या अगर हमने वाटर में ही डिसॉल्व किया तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बना दिया, तो उसको सिंथेटिक मीडिया बोला जाता है। इसमें हम बस जो भी कॉम्पोजिशन जितने जितने ग्राम डलेगा वेइंग बैलेंस में वे करके उनको घोलकर और उनको या तो गर्म करके अपना सोल्यूशन बनाते हैं जो न्यू सिंथेटिक मीडियम कहलाता है। अल्टरनेटिवली वी मे बी यूजिंग कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट सच एज न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ट्रिप्टिकेस, सोया ब्रॉथ, टीएसबी और ब्रांड हर्ट इन्फ्यूजन। तो मार्केट में भी कुछ ऐसे अवेलेबल होते हैं हमारे पास जो हम मीडिया यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। और मीडिया में हाईली कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, पेप्टोन्स, बीफ एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कैसीन डाइजेस्ट, ये सब डलता है। सच मीडिया को सेमी सिंथेटिक मीडिया, इनको क्योंकि इनमें हमने बाजार से भी सामान खरीदा है तो उसको ऐड किया है, तो इन्हें सेमी सिंथेटिक मीडिया कहते हैं। दीज मीडियाज आर वेल सूटेड फॉर कल्चरिंग मोस्ट माइक्रोब इन द लेबोरेटरी में
बहुत सारे माइक्रोब्स को कल्चर करने के लिए ये मीडिया भी यूज होते हैं सेमी सिंथेटिक। हाउएवर, व्हेन वन वांट्स टू कल्चर माइक्रोब ऑन अ लार्ज स्केल फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल मेटाबोलाइट्स, जब लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री में करना है तो दीज न्यूट्रिएंट सोर्सेज रॉ मटेरियल में वी नीड अ प्री ट्रीटमेंट बिफोर अदर कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग ग्रोथ मीडियम आर। तो इनकी प्री ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, इनको पहले प्योरीफाई करना हो, तभी हम इनको केमिकल लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। तो हमें सारी चीजों को प्योरीफाई करना होता है, और इवन हमें कुछ और भी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी अगर ग्रोथ मीडियम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा ग्रोथ मीडियम यूज करें। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ ग्रोथ मीडियम के, कि उससे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनना चाहिए, बायोमास पर ग्राम द सबस्ट्रेट यूज, एंड द शुड बी कंसिस्टेंट क्वालिटी, जो प्रोडक्ट है वो कंसिस्टेंट क्वालिटी का बनना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, एंड कॉज मिनिमम प्रॉब्लम्स। उससे प्रॉब्लम्स भी प्रिपरेशन में और उसके प्योरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मीडिया हमें चुनना है जो सबसे कम प्रॉब्लम्स करे प्रिपरेशन करते वक्त। ऐसा मीडिया चुनना है जिसकी क्वालिटी भी प्रोडक्ट की सेम रहे पूरे ईयर। ऐसा प्रोडक्ट चुनना है जो कि सबसे ज्यादा बायोमास यील्ड करे, गिव मिनिमम प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन के वक्त मिनिमम प्रॉब्लम्स करे जो उसे बना रहा है। एरेशन उसमें करते वक्त प्रॉब्लम ना हो, वेजिटेशन करते वक्त, एक्सट्रैक्शन करते वक्त, प्योरिफिकेशन करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो कार्बन सोर्स जब हम यूज कर सकते हैं तो ये इधर कार्बन सोर्स दिए हुए हैं, मैं आगे नाइट्रोजन सोर्स, ट्रेस एलिमेंट, सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कार्बन सोर्स में हम सीरियल ग्रेन, स्टार्च, केन मोलासेस, सुक्रोज, लैक्टोज ये सब यूज कर सकते हैं कार्बन सोर्स के लिए। नाइट्रोजन सोर्स के लिए हम अमोनियम सॉल्ट, यूरिया, कॉर्न स्ट्रीप्स लिक्वर, स्लॉटर हाउस वेस्ट ये सब यूज कर सकते हैं। कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्सेज मेंशन अबव आर चीप एंड इजीली अवेलेबल, ये आराम से मिल जाते हैं, सस्ते होते हैं, आराम से खरीद सकते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम also need in small quantity. Growth factors, some microorganism cannot synthesize specific nutrients like some amino acids or some vitamins. ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज नहीं कर पाते, जैसे कुछ अमीनो एसिड्स हैं, कुछ विटामिन है। सच ग्रोथ फैक्टर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू मीडियम, ये ग्रोथ फैक्टर मीडियम में इनकॉर्पोरेट होते हैं in adequate amount as pure compound or as a component of complex mixture. Anti-foaming agents, in most microbial processes, foaming is a problem. Foaming may be due to the component of the culture medium or some molecules produced by the microbes. The most common cause of foaming is the presence of protein in the culture medium. तो एंटी फोम एजेंट भी हमें यूज करने पड़ते हैं क्योंकि मोस्टली माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस में फोमिंग प्रॉब्लम हो जाती है, झाग बनते हैं, उसमें गैसेस बनती हैं। तो फोमिंग कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडियम के और कुछ मॉलिक्यूल्स जो माइक्रोब ने बनाए उससे होती हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फॉर्मिंग इज प्रोटीन्स इन द कल्चर मीडियम में अगर प्रोटीन होते तो उससे भी फॉर्मिंग होती है। एक्सेस फॉर्मिंग डीनेचर कर लेता है प्रोटीन को and provides hindrance to free distribution of oxygen. Commonly using antifoaming are fatty acids such as olive oil, sunflower oil, सिलिकॉन्स। एनर्जी सोर्सेस क्या हो सकते हैं? कार्बन सोर्सेस, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, ये एनर्जी सोर्सेस की तरह भी काम करते हैं। एंड वाटर, वाटर हमें मेजर कंपोनेंट में चाहिए होता है कल्चर मीडिया के। जब भी हम कल्चर कर रहे हैं माइक्रो को लेबोरेटरी में तो सिंगल डिस्टिल और डबल डिस्टिल वाटर को हमें यूज करना होता है। व्हेन एक्सेसिंग इट्स suitability large scale microbial culture as in industries, we should consider the pH and the dissolved salts. Water is also required for ancillary services such as heating, cooling, rinsing. Clean water of consistent composition is therefore prerequisite for large scale cultivation of microbes. Culture procedures, sterilization procedures, जैसे हम कोई भी कल्चर करेंगे तो माइक्रोब को कल्चर किया जाता है लेबोरेटरी में जनरली 100 to 1000 ml फ्लास्क में। स्टेरिलाइजेशन न्यूट्रिएंट मीडियम का भी करना होता है ऑटोक्लेव मशीन में, जिसमें 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस प्रेशर देना होता है फॉर 15 to 20 minutes. However, when microbes are cultured on a large scale for such fermentation industry, we need to sterilize thousands liter of culture medium as substrate. There is a possible problem for the sterilization of huge culture vessel. Fermenter steam को यूज किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। फर्मेंटर पूरा वेसल है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में 1000 लीटर तक उसके अंदर सबस्ट्रेट आ सकता है। कल्चर इंडस्ट्री में जब करते हैं तो ये यूज किया जाता है फर्मेंटर। तो इसको भी स्टेरिलाइज अंदर से पूरा साफ करना होता है, दूसरे माइक्रोब्स को इसमें से
किल कराना होता है, तो स्टीम इसके अंदर इन्फ्यूज करके स्टीम से फर्मेंटर को स्टेरिलाइज कर दिया जाता है। एंड फर्मेंटर स्टेरिलाइज बिफोर स्टेराइल मीडियम, उसके बाद ही उसमें साफ मीडियम डाला जाता है। And the steam through its jacket or coil, the steam is sparked into the vessels, all entries allowing it to exist from the air outlet. स्टीम अंदर उसमें स्पार्ज की जाती है, अब बहुत सारे मतलब एग्जिट से, और वो धीरे धीरे फिर एयर आउटलेट से बाहर निकल जाती है। स्टीम प्रेशर इज हेल्ड एट 15 lbs एंड इन द वेसल फॉर 20 मिनट्स। इसमें भी 20 मिनट के लिए स्टीम का प्रेशर रखा जाता है। द एयर इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन शुड बी स्टेरिलाइज, एयर भी साफ भेजी जाती है, स्टेरिलाइज एयर भी जाती है। एरेशन और मिक्सिंग कंटिन्यूअसली करनी होती है। व्हेन माइक्रोब्स आर कल्टिवेटेड इन लेबोरेटरी, एरेशन एंड मिक्सिंग कैन बी इजीली अचीव बाय पुटिंग द फ्लास्क ऑन शेकर। शेक कल्चर फ्लास्क जब हम लैब में कर रहे हैं तो आराम से शेकर्स पे रख देते हैं, छोटे छोटे 100 ml 1000 ml के फ्लास्क, और वो शेक करते करते उसके अंदर एरेशन और मिक्सिंग करते रहते हैं, जिसमें फर्दर ऑगमेंटेड बाय यूजिंग द बैफल फ्लास्क, और बैफल फ्लास्क भी आते हैं। In the large-scale bioreactor, however, transfer of oxygen microorganism in a particular difficulty because the microorganism must be mixed well. Oxygen dispersed to achieve relatively uniform concentration. Many fermenter design mechanical stirrer to mix the medium. फर्मेंटर में मैकेनिकल स्टीरर इम्पेलर्स ब्लेड लगे रहते हैं बीच में, जो उसका मीडियम घुमाते रहते हैं हमेशा, टर्बाइंस की मदद से, रोटेटर्स की मदद से वो मूव करते रहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। एंड फोर्स जेनरेशन भी मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन और देती है। ये आपका बैफल फ्लास्क है, इसका डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर शेकर्स दिखा रखे हैं, और कल्चर फ्लास्क हमें ए और बी शेकर्स और इंक्यूबेटर शेकर दिखा है, जिसमें हीट के साथ साथ भी शेकर होता है, तो इंक्यूबेटर शेकर भी दिखा रखा है। तो ये कल्चर लेबोरेटरी स्केल पे जब हम कल्चर कर रहे हैं तो ये हमें मतलब एजिटेशन के लिए यूज किया जाता है, और ये हमारा बेसिक फीचर है किसी फर्मेंटर का, बायोरिएक्टर का। जैसे हमने बोला था कि फर्मेंटर में हमेशा सारे ऐसा डिजाइन होता है फर्मेंटर का कि इसके अंदर जो कल्चर है वो आराम से सारे पैरामीटर्स पे चेक हो सकते हैं, स्टीम से स्टरलाइज हो सकता है, पीएच कंट्रोल से पीएच इसमें मेंटेन कर सकते हैं, एग्जॉस्ट से एग्जॉस्ट बाहर रिलीज हो सकता है। इम्पेलर्स बीच में लगे हुए हैं, आप देख रहे हो कि जो इसके मीडिया को पूरा मिक्स करते हैं, ये ब्लेड वाले इम्पेलर्स हैं। यहाँ कूलिंग जैकेट बाहर है, जिसमें से वाटर इसको कूल भी करता रहता है। फर्मेंटर में जो हीट बनती है, एक तरफ से पानी अंदर जाता है, दूसरी तरफ से पानी बाहर आता है, एंड ये हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। स्पार्ज एयर बबल्स के लिए यहाँ पर स्पार्जर आप देख रहे हो, एक राउंड सा स्ट्रक्चर है जिसमें होल्स बने हुए हैं, तो एयर बबल्स यहाँ से आते रहते हैं। कल्चर ब्रॉथ ये येलो का आपको दिखा रखा है, जो साइड में कल्चर ब्रॉथ भर रखा है, ये इससे दिखाया हुआ है। स्टीम स्टेरिलाइजेशन के वक्त जब इसमें कल्चर नहीं होगा मीडिया, तब पहले जब पूरा वेसल खाली होगा तब स्टीम से स्टेरिलाइज करने के लिए दिए रखा है। स्टेराइल एयर दूसरी तरफ से भी इसके अंदर उसका इनलेट दिखा रखा है। और एसिड बेस रीसेट और पंप ये भी यहाँ दिखा रखी है कि एसिड बेस रीसेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए पंप है। बीच में जो इम्पेलर जिससे जुड़े हुए हैं एक रोटेटर रॉड से, ऊपर मोटर है, ये मोटर है जो इस रोटेटर इम्पेलर को चलाती है और चीजों को मिक्स करती है। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द लेक्चर। आपने आज समझा कि कैसे कल्चर करते हैं, हम माइक्रोब्स को कल्चर करते हैं, और हम लेबोरेटरी स्केल पे छोटे छोटे कल्चर फ्लास्क में कल्चर करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं और शेकर मीडियम पे रखते हैं ताकि मिक्सिंग हो सके। बैफल फ्लास्क में करते हैं। एरेशन मिक्सिंग कल्चर प्रोसीजर्स हमने पढ़े, ये सोर्सेस पढ़े हमने, नाइट्रोजन सोर्सेस, ट्रेस एलिमेंट्स लाइक आयरन, जिंक, कॉपर एंड मोलिब्डेनम, ग्रोथ फैक्टर्स पढ़े हमने कुछ, और जैसे अमाइनो एसिड्स, एनर्जी सोर्सेस पढ़े हमने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंटी फोमिंग एजेंट्स, ऑयल की तरह ऑलिव ऑयल एंड वाटर पढ़ा।
तो ये मीडिया में डलने वाले, और हमने टाइप्स ऑफ मीडिया भी पढ़ लिए, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, और किस तरह से हम सिलेक्ट करें अपने गुड मीडियम को, उसके पॉइंट्स पढ़ लिए कि मैक्सिमम यील्ड हो, कंसिस्टेंट हो पूरे ईयर, कॉजिंग मिनिमम प्रॉब्लम्स, सबसे कम हो, मिनिमम प्रॉब्लम्स दे वो एरेशन एजिटेशन में, न्यूट्रिएंट माइक्रोबियल कल्चर के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, और चैप्टर को हमने आज कवर किया यहाँ तक, बायोरिएक्टर के बेसिक मॉडल तक। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा, एंड अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आपने वीडियो लाइक करी है तो यू कैन ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर रीडिंग बायोटेक्नोलॉजी class 12th and preparing for their board exam. Thank you and have a nice day. So I will stop end the video here. Thank you for patiently listening and understanding. I hope you have understood and enjoyed the lecture. Happy learning.